Students, I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, chapter 4th Animal Kingdom ਦੇ subphylum Vertebrata ਦੀ superclass Tetrapoda ਦੇ under last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ class Reptilia ਤੱਕ finish ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ topic ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। So students, ਤੁਸੀਂ ਇਹ beautiful sound ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ sounds ਨੇ ਇਹ? Yes, you are right. These are the sounds of birds and birds ਨੂੰ class Aves ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Characteristic feature of Aves is the presence of feathers. ਬਹੁਤ beautiful feathers ਹੁੰਦੇ ਨੇ birds ਦੇ and these feathers are the part of exoskeleton. These are the epidermal extensions. Body is streamlined. Birds ਦੀ body streamlined ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Anteriorly and posteriorly it is pointed, ਵਿੱਚੋਂ broad ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ body ਦੀ shape ਹੈ birds ਨੂੰ fly ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੀ ਹੈ। It is a flight adaptation. Birds they possess beak. Beak is without teeth. Birds ਦੇ mouth ਵਿੱਚ teeth ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Forelimbs are modified into wings. ਜੋ birds ਦੇ wings ਨੇ actually they are the forelimbs. Hind limbs they have scutes. Scutes hard plate like structures ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, hind limbs अगर ਤੁਸੀਂ कदे birds ਦੀਆਂ touch ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ hard touch ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ due to the presence of scutes which are dermal in origin and these hind limbs they are used for walking, swimming and perching। ठीक है, perching ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ birds ਨੇ ਜਦੋਂ branch ਦੇ ਉੱਪਰ sit ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ these hind limbs can fold and they can have a tight grip on the branch। Birds कदे भी branch तो गिरते नहीं है due to this modification of hind limbs। Parts of a bird, important morphological body parts की ने बेटे जड़े outside तो visible होंगे ने morphologically beak without teeth। ठीक है, this is head portion। ठीक है, this is neck portion। It is glowing in case of males। These are wings covered with feathers। Hind limbs help in walking, swimming, tail। So these are the important morphological features of body of bird। Endoskeleton is bony, bones da बनया ਹੁੰਦਾ endoskeleton and bones are pneumatic। Pneumatic bones ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ bones light weight ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, hollow ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ air ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is very important adaptations for flying। Sternum is keeled। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ important flight adaptation ਹੈ। Keeled sternum means कि V shaped sternum ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ flight muscles ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ attached ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Human ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ sternum ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ flat ਜਿਹੜਾ ਹੈ plate like ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Birds ਦੀ skin is dry। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ gland ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ birds ਦੀ skin ਤੇ except one oil gland which is present at the base of tail and this gland is called preen gland। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ birds they always seem to be used doing something with their feathers। ਆਪਣੇ feathers ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ preen gland ਤੋਂ oil ਨੂੰ extract ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ feathers ਦੀ conditioning ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਫੀਦਰਸ ਵੈਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬਰਡ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਐਕਟੋਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਇਲ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਰਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ preen their feathers। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ crop और एक होंगे gizzard। crop तुसी देख रहे हो बैलून लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इसोफेगस। बर्ड्स की करते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने फूड स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बिफोर डाइजेस्टिंग और डाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ organ gizzard help करता है। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ birds ਦੇ food ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਲਿਥਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਇਨ ਚਰਨਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ। ਸੈਕਸਿਸ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होएगी। और बर्ड्स एग ले करते हैं, सानू पता है। दे आर ओवीपेरस, एग्स आर पॉलीलैसिथल। पॉलीलैसिथल मीनस कि दे हैव प्लेंटी ऑफ योग, ताकि जिहड़ा अंदर डिवेलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, बर्ड की, ठीक है, वो अच्छे तरीके दे नाल उसनू न्यूट्रिशन मिल सके। डिवेलपमेंट इज डायरैक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। और राइट ओवरी और राइट ओवीडक्ट बर्ड्स दे विच, फीमेल बॉडी दे विच, दे आर वेस्टिजियर, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਰਡ ਦਾ weight ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਐਗ ਹੈਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੀ ਬਰਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਬੀ ਬਰਡ ਦੀ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਨਿਡੀਕੋਲਸ ਬਰਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨਿਡੀਫਿਊਗਸ ਬਰਡਸ। ਨੀਟੀਕੋਲਸ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਹੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਮੂਵ, ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵਾਕ, ਫੀਦਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ 100% ਪੈਰੈਂਟਲ ਕੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੀਫਿਊਗਸ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਦਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਹੈਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾर्ट है लाइक ह्यूमन, ठीक है, लेकिन डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। हार्ट दे विच डिफरेंस की है, अगर असी कहिए कि ह्यूमन दा हार्ट भी तो 4 चैंबर्ड है और ये बर्ड दा हार्ट है, तो डिफरेंस की है कि जिहड़ी मेन अरोटा है इट गोज फ्रॉम द राइट साइड इन केस ऑफ बर्ड्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमन इट गोज टू द फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज 4 चैंबर्ड हार्ट है ह्यूमन दा भी एंड बर्ड्स दा भी। किडनीज ने फॉर एक्सक्रीशन एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। So they are यूरिकोटैलिक organisms, they are homeotherms और वार्म ब्लडेड, वो अपना बॉडी का टैंपरेचर मेनटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। साइरिंक्स, दिस इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स, ठीक है। जिस तरह साडे वोकल कॉर्ड्स ने ह्यूमन दे विच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह बर्ड्स दे ट्रेकिया दे थल्ले एक छोटा जिहा ऑर्गन है जिसनूं कहंदे ने साइरिंक्स, एंड इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, मीन्स रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। बर्ड्स दे विच एक बहुत ही एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स देखो 1000 किलोमीटर तक उड़ लेंदे ने, ठीक है। उड़न वास्ते इन्होंने की चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कित्थों आएगी अगर ऑक्सीजन बॉडी दे विच मैक्सिमम होएगी, ठीक है। सो इन्हां दा एक बहुत ही यूनीक रेस्पिरेशन है, वन वे रेस्पिरेशन है, एफिशिएंट रेस्पिरेशन है, ठीक है, थ्रू लंग्स। देखते हैं असी किवें है, तुसी इत्थों डायग्राम तो ही देख रहे हो बेटे कि बर्ड्स दी लंग्स तो इलावा इहदे एंटीरियर साइड ते, ठीक है, थोरैसिक रीजन ते, पोस्टीरियर साइड ते, ये जिहड़े तुसी ब्लू कलर दे सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर एयर सैक्स। 7 to लैके 9 तक एयर सैक्स डिपेंडिंग अपॉन द बर्ड्स प्रेजेंट हुंदे ने बर्ड्स दी बॉडी विच, ठीक है। और ये किस तरह काम करते ने, देखो ट्रैकिया दे थ्रू एयर बर्ड्स दी लंग्स विच जाएगी। लंग्स दे विच जान दी बजाय ये पहला पोस्टीरियर एयर सैक्स दे विच इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर एयर सैक्स तो फिर ये जिहड़ी एयर है लंग्स दी पैराब्रोंकाई दे विच जाएगी। ये तुसी जिहड़े देख रहे हो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर पैराब्रोंकाई। बर्ड्स दे विच एल्वुलाई नहीं हुंदे, ठीक है। उन्हां दी एयर जिहड़ियां सैक्स ने लंग्स दे विच नहीं हुंदियां, बल्कि पैराब्रोंकाई हुंदे ने। पैराब्रोंकाई दे विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुंदा है, दे टेक अप द ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो पैराब्रोंकाई तो एंटीरियर एयर सैक्स दे विच आ जांदी है। एंटीरियर एयर सैक्स तो फिर थ्रू ट्रेकिया बाहर निकलती है। सो लंग्स हमेशा ऑक्सीजनेटेड एयर ही जिहड़ी उन्हां विचों पास हुंदी है,
ठीक है। ऐसे करके बर्ड्स ਨੂੰ मैक्सिमम एनर्जी मिलती है फॉर फ्लाइंग। नर्वस सिस्टम की गल करिए तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स, ईयर दे विच ओनली वन नॉसिकल दैट इज स्टेप्स इज प्रेजेंट। बर्ड्स की जिहड़ी विजन है दैट इज सुपर विजन, बहुत शार्प विजन होंदी है। ट्रीज पे बैठे हुए दूर तक के देख सकते हैं, अपने प्रे नूं देख सकते हैं, ठीक है, अपना डिफेंस कर सकते हैं। सो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्हों की डबल अकोमोडेशन पावर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पैशल मसल्स, ठीक है। ये जोड़ा है इन्हों की अकोमोडेशन पावर मैक्सिमम हो जाती है। सुपीरियर विजन असी कह सकते हैं, शार्प विजन कह सकते हैं। एंड बर्ड्स कैन सी अल्ट्रा वायलट कलर्स ऑल्सो विच ह्यूमन कैन नॉट। हुण असी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटे बर्ड्स दियां, ठीक है। कोलंबिया लिविया पिजन, कॉमन नेम इज पिजन। असी सारे अपने घरां दे आस पास पिजन नूं देखते हैं, ठीक है। इनू रॉक पिजन भी कहा जाता है और इनू मैसेंजर बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उदों फोन तो होंदे नहीं सी बेटे, ठीक है, ना ईमेल्स होंदियां सीगियां, ठीक है, ना पोस्टमैन होंदे सी। सो पिजन्स नूं ड्यू टू देयर शार्प मैमरी इन्हां नूं मैसेंजर के तौर पर वरत्या जाता सी। इन्हां दे लैग्स दे नाल मैसेज लिख के टैग करके जिहड़ा है इन्हां नूं उड़ा दिता जाता सीगा, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दा फीडिंग प्लेस एंड नैस्ट दोनों सैपरेट रखे जाते सी, ठीक है। और ये कदे भी अपनी नेस्ट नहीं भूलते, दूर दूर उड़ के अपना फूड लैके आते हैं और वापस अपनी नेस्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो मेल्स हैव ग्लॉसी फीदर्स। बर्ड्स दे विच जिन्ने भी मेल्स ने उन्हां दी शाइनिंग लुक होंदी है, दे आर मोर अट्रैक्टिव दैन फीमेल्स। पिजन मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ देयर बेबीज। और एक क्रॉप जिहड़ा असीं हुणे देखिया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उहदे विचों वाइटिश मिल्क सिक्रीट हुंदा है, जिहदे नाल अपने यंग वंस नूं फीड करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल दे कैन फीड विद दिस हेल्प ऑफ पिजन मिल्क। अनदर एग्जाम्पल इज कोयल, ठीक है, जीनस यूडाइनेमिस। कोयल तुसी सब ने कोयल की ब्यूटीफुल आवाज़ सुनी होएगी, ठीक है। और जिहड़ी असीं कोयल की आवाज़ सुनते हैं बेटे, वो मेल बर्ड की आवाज़ होंदी है। ऐसे करके मेल बर्ड नूं नाइटिंगेल भी कहा जाता है। देखो कितनी ब्यूटीफुल। नेस्ट पैरासिटिज्म शो करती है कोयल। नेस्ट पैरासिटिज्म का मतलब कि ਜਿਹੜੇ कोयल कुक्को बर्ड के एग्स ने ਜਿਹੜੇ वो क्रो बर्ड्स के एग्स नाल बिल्कुल मेल खाते हैं। कुक्को बर्ड अपने एग्स क्रो की नैस्ट दे विच देख के आती है और क्रो, ठीक है, उन्होंने अपने एग्स समझ के उन्होंने जिहड़ी है केयर करता है, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म भी कहते हैं, नैस्ट पैरासिटिज्म भी कहते हैं। सो तुसी देख रहे हो दिस इज द फीमेल कोयल एंड दिस इज मेल कोयल, ठीक है। इन केस ऑफ बर्ड्स मेल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव देन females. Pavo, our national bird, peacock, male bird has tail feathers. ये जड़े सारे ने की है, ये male bird है, and this is the female pavo. Male bird has shining feathers. Great Indian bustard, heaviest of flying birds, and it is an endangered bird of Rajasthan. ठीक है, तुसी important examples याद रखनिया ने। डोडो मॉरिशियस दा बर्ड सी, हुणे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड इट वॉज फ्लाइटलेस बर्ड, क्योंकि काफ़ी हैवी बर्ड सी, सो इट कुड नॉट फ्लाई। टाइटो आउल, ठीक है, यदि भी बहुत विजन शार्प होंदी है, कीन विजन होंदी है, बायनोकुलर विजन होंदी है। बायनोकुलर विजन का मतलब कि यूजिंग 2 आईज विथ ओवरलैपिंग फील्ड्स ऑफ व्यू अलाउइंग गुड परसेप्शन ऑफ डेप्थ, इसनूं बायनोकुलर विजन कहते हैं, ठीक है। ये नोक्टर्नल है, रात नूं एक्टिव हुंदा है बर्ड आउल। और ये एग्जाम्पल की दिया हमिंग बर्ड दी, स्मॉलेस्ट बर्ड, इट कैन सक द नैक्टर स्टिल फ्लाइंग, ये उड़ते उड़ते ही नैक्टर नूं सक कर सकता है। दिस इज द हमिंग बर्ड ऑफ इंडिया, सनबर्ड, स्मॉलेस्ट इंडियन हमिंग बर्ड। दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एविस। क्रो, कॉर्वस आम देखते हैं असी,
ठीक है, पैरट, ठीक है, स्टैसिफॉर्म्स, ये भी कॉमनली असी देखने हैं, ब्यूटीफुल बर्ड पैरट। हुण असी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल फ्लाइटलैस बर्ड्स जिहड़े उड़ नहीं सकते। कीवी, ऑस्ट्रिच, दीज आर द फ्लाइटलैस बर्ड्स। और बेटे इन्हां दा जिहड़ा अटैक है काफ़ी डेंजरस हुंदा है, दे कैन अटैक टू ह्यूमन्स ऑल्सो। एमू, अनदर फ्लाइटलैस बर्ड। पेंगुइन, जिहड़ा एंटार्टिका च देखा जाता है, इट इज़ ऑल्सो फ्लाइटलैस बर्ड। ठीक है, हुण असी बर्ड्स की इन्नी स्टडी की, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर किए, उन्होंने कुछ सिस्टम्स असी किए इंपॉर्टेंट एंड इंटरस्टिंग, जोड़े फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स किए, सारी स्टडी नूं की कहंदे ने, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल नवाजिया गया डॉक्टर सलीम अली नूं। डॉक्टर सलीम अली ने बहुत ही सिस्टैमिक तरीके दे नाल बर्ड्स की स्टडी की, सो इन्हां नूं पक्षी राजा भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ नेस्ट्स ऑफ बर्ड, ठीक है, किन्ने अच्छे तरीके दे नाल बर्ड्स अपनी नेस्ट बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड निटोलॉजी। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा टर्म्स यू मस्ट नो। ठीक है, और सर थॉमस हग्सले ने बर्ड्स नूं क्या सी, बर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स तो ही एवोल्यूशन हुई है एंड बर्ड्स का ओरिजिन होया है। ठीक है, so this is all about the class Aves. In the next lecture we will take up the class Mammalia. Till then, have a good day, study well, learn well. Thank you.